Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is India, that is Bharat. So before starting the chapter you have to know some important terms. Inhabitants, that are the people who live in a particular place, and constitution, that is a document that spells out the basic principles and laws of a nation. And the Indian constitution came into force in 1950, right? So bachche, this is the picture of a scene from rural India about 2300 years ago, and that is the north gate of the Great Sanchi Stupa. Fine. Here is an interesting fact that you have to know. The Indian constitution, which was first written in English, uses the phrase India, that is Bharat, right at the beginning. Okay, शुरू में जब constitution लिखा गया इंडिया का, तो उसमें इंग्लिश में इंडिया का नाम जो है वो यूज़ किया गया था, and that is भारत. Okay, similarly हिंदी वर्जन जो है constitution का, that mention the same as भारत, अर्थात इंडिया. Okay, तो इंडिया और भारत दोनों ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नाम जो हैं वो लिए गए हैं. India, as we know it today, is a modern nation with well-defined borders, defined political units or states, and a known population. But it was very difficult, it was very different 500 years ago, 2000 years ago, or even 5000 years ago. This region of the world, which is often called the Indian subcontinent, has had many different names and shifting boundaries. अभी जो हमारा इंडिया है, जिसमें हम प्रेजेंट इंडिया में रहते हैं, जिसकी डेफिनेट बाउंड्री है, एक प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम है, एक डेफिनेट पॉपुलेशन है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था. इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो बाउंड्रीज हैं वो शिफ्ट होती रहती थी. क्यों होती रहती थी बच्चे? उस टाइम क्या होते थे? किंग्स रूल करते थे, राइट? जो किंग जिस टेरिटरी को विन कर लेता था, उस बाउंड्री को, उसकी बाउंड्री जो है वो एनेक्स हो जाती थी और उस टेरिटरी को कैप्चर कर लेता था, एक्वायर कर लेता था. सो वी कैन लर्न अबाउट इंडियाज पास्ट एंड एवोल्यूशन फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज. सो दिस इज द Indian Constitution, the first page of the Constitution of India, that is the source that is represented the Constitution of India. Okay, first page of Constitution. Next is, this is a physical map of the Indian subcontinent with some of its rivers. ये इंडिया का फिजिकल मैप है जिसमें फिजिकल फीचर शो किए हुए हैं और रिवर्स जो है वो शो की हुई हैं जो उस टाइम की मेन रिवर थी. Here is an activity you have to do. Consider the given physical map of the Indian subcontinent and what are its natural boundaries. Natural boundaries जो है आपको दिख रही होंगी ना, ये बाउंड्रीज एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज हैं, तो वो कहाँ कहाँ पर बाउंड्रीज है, कहाँ पर वो खत्म होती है, और रिवर के नाम जो है वो भी आप याद कर सकते हो. फाइन. So throughout history, India has been called by different names, both by its inhabitant यानी वहाँ के रहने वाले, और by the foreigner visiting from outside. तो इंडिया को अलग अलग नाम से बुलाया जाता था. These names have come to us from ancient texts, accounts of traveler, or various pilgrims and inscriptions. कैसे हमें पता लगा? हिस्ट्री के सोर्सेज से हमें ये पता लगा कि इंडिया को अलग अलग नाम से बुलाया जाता था. So how Indians named India? तो अलग अलग नाम से बुलाया जाता था, तो इंडिया नाम क्यों रखा? So the Rigveda is India's most ancient text as it's several thousand year old, and in it the northwest region of the subcontinent is called by the name सप्त सिंधवा. ओके, ये नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है इसको सप्त सिंधवा के नाम से बोला जाता था, यानी कि लैंड ऑफ 7 रिवर. अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 7 रिवर्स हैं, तो इसीलिए इसको सब सिंधु के नाम से जाना जाता था. द वर्ड सिंधवा दैट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम सिंधु विच रेफर्स टू द इंडस रिवर. इंडस रिवर को सिंधु कहा जाता था, और एट टाइम्स टू अ रिवर इन जनरल. ओके, now with the passage of times, names for the other parts of India appear in the literature. The Mahabharata, one of the India's most famous texts, lists many regions such as Kashmira, most parts of the present day Kashmir, Kurukshetra, that is present day Haryana, and Prayag Jyotish, that is present day Assam, Vanga, the present day of parts of Bengal, and Kacha,
Kutch, that is the present day Kutch, Kerala, more or less present day Kerala, etc. सो महाभारत में इन नामों को यूज़ किया गया है, तो इंडिया के बहुत सारे एरियाज़ को उसमें बताया गया है. द महाभारत यूजेस द टर्म्स भारतवर्ष एंड जम्बूद्वीपा. ठीक है, महाभारत में इंडिया को भारतवर्ष और जम्बूद्वीपा के नाम से बोला गया है. दिस एपिक और वेरी लॉन्ग पोएम वाज रिटन फ्रॉम अ फ्यू सेंचुरीज ऑफ BC onward. Now the term Bharatvarsh encompasses the entire subcontinent, and the epic also include the name of a number of rivers and people. Or Bharatvarsh means the country of the Bharata, and the name Bharat refer to the one of the main Vedic group of people mentioned in the Rig Veda. भारतवर्ष क्यों कहा जाता था? The land of the or the country of the Bharats. So भारत जो है वो उस टाइम का एक वैदिक ग्रुप होता था, वहाँ के लोगों को भारत कहा जाता था, तो इसीलिए भारतवर्ष का नाम दिया गया. Later several kings named Bharat ruled different kingdoms of India. So the term Jambudvipa, that means the island of the fruit of the jamun tree, also called जम्बुल ट्री. ओके, इसीलिए उसको जम्बूद्वीपा का नाम दिया गया क्योंकि वहाँ पर जामुन ट्री होते थे. सो मालाबार प्लम ट्री एटसेट्रा, कुछ मालाबार प्लम ट्री कहते थे. दिस इज कॉमन ट्री नेटिव टू इंडिया, एंड जम्बूद्वीपा टू केम टू मीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. द ग्रेट इंडियन एम्परर अशोका हैज लेफ्ट अस मैनी इंस्क्रिप्शन. जो ग्रेट इंडियन एम्परर थे उस टाइम पर अशोका, उन्होंने बहुत सारे उनके इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हमें मिले हैं. इन वन ऑफ देम ही यूज द नेम जम्बूद्वीपा टू डिस्क्राइब द होल ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने जम्बूद्वीपा कहा है इंडिया को, एंड विच एट दैट टाइम इंक्लूड द प्रेजेंट डे बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान. और इन पार्ट्स को भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने इंक्लूड किया है. सो बच्चे, दिस इज द मैप दैट इज़ ऑफ फ्यू रीज़न लिस्टेड इन महाभारत. महाभारत में जो कुछ रीज़न जो हैं वो बताए गए हैं. ठीक है, तो इसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि कैसे जो है महाभारत में इतने सारे एरियाज़ को इंडिया में दिखाया गया है. फाइन. नाउ some centuries later भारत became the name generally used for Indian subcontinent. और कुछ टाइम के बाद भारत जो है वो नाम यूज़ होने लगा. For example, in an ancient text called the विष्णु पुराण it is given, और विष्णु पुराण में भारत जो है वो नाम जो है यूज़ किया गया है. ठीक है, so this name Bharat is used even today. It is generally written as Bharat is North India, while in South India it is written as Bharatam. Okay, तो नॉर्थ इंडिया में अभी भी भारत का यूज़ करते हैं हम, भारतवर्ष, राइट. तो भारत नॉर्थ इंडिया में भारत कहते हैं और साउथ इंडिया में इसको भारतम कहा जाता है. एक्टिविटी 2, आपको क्या करना है? व्हाट डू यू थिंक आर द स्नोई माउंटेन्स. स्नोई माउंटेन्स क्या होती है, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? ठीक है, उसके बारे में आप क्या जानते हो? डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ भारत इज करेक्ट? तो क्या हम स्नोई माउंटेन भारत को नेम कर सकते हैं? इज दैट करेक्ट? तो ये आप अपने ओपिनियन लिखेंगे. फाइन. नेक्स्ट है हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया. फॉरेनर्स जो थे, ठीक है, जो दूसरी कंट्रीज से आए थे इंडिया में विजिट किया जिन्होंने, उन्होंने इंडिया को कैसे बोला? द Persians, the ancient inhabitants of Iran, were the first foreigners to mention India. In the 6th century BC, Persian emperor gained control of the region of the Indus-Sindhu river. कुछ टाइम के लिए पर्सियन किंग जो था उसने सिंधु रिवर के आसपास का एरिया जो है, यानी कि इंडस रिवर के आसपास का एरिया जो है उसको कैप्चर कर लिया था. सो द पर्सियंस कॉल्ड इंडिया एज हिंद. तो इंडिया को वो हिंद कहते थे, हिंदू और हिंदू, विच आर एडेप्टेशंस ऑफ सिंधु इन देयर लैंग्वेज. जो सिंधु में, सिंधु को वो क्या कहते थे? एस को एच प्रोनाउंस करते थे. तो इस तरीके से सिंधु को हिंदू कहा गया और इसी से एक नेम आ गया इंडोई और इंडिके. दे ड्रॉप्ड द इनिशियल लेटर एच ऑफ हिंदू एंड बिकॉज इट डिड नॉट एग्जिस्ट इन देयर ग्रीक लैंग्वेज. उसके बाद सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा, उसके बाद एच उन्होंने ड्रॉप कर दिया और धीरे धीरे इंडिया को इंडोई कहने लगे, इंडी कहने लगे. सो द एंशिएंट चाइनीज रेफर टू इंडिया एज यिंतु और यिंदू. दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली come from Sindhu in the given manner. सिंधु, हिंदू, इंदू, यिंदू, इस तरीके से चाइनीज लोग कहने लगे, तो इस तरीके से इंडिया नाम पड़ा. ओके, here is an interesting fact that you have to know.
In the 7th century AD, Xuanzang, a Chinese traveler, came to India. He visited many parts of India, collected Buddhist texts and met scholars and returned to his country after 17 years. So 17 साल इंडिया में रहने के बाद वो वापस अपनी कंट्री चाइना चला गया. There he translated the manuscript he took back with him from Sanskrit into Chinese, and many other Chinese scholars visited India subsequently. और वहाँ पर जो टेक्स्ट बुक यहाँ से वो लेकर गए थे संस्कृत भाषा में, वो चाइनीज़ में ट्रांसलेट की वहाँ जाके, और भी बहुत सारे चाइनीज़ स्कॉलर जो हैं वो इंडिया में आते जाते रहे. सो अनदर चाइनीज़ वर्ड ऑल्सो ड्राइव्ड फ्रॉम सिंधु. दूसरा जो चाइनीज़ ने कहा वो भी सिंधु नाम जो है, सिंधु नाम से ही वो ड्राइव होता है. दैट वॉज तियांजू. बट दिस word could also be understood as heavenly master. So this reflects the respect of the ancient Chinese had for India as the land of the Buddha. उस टाइम इंडिया जो है वो लैंड ऑफ बुद्धा थी. ठीक है, तो इंडिया, उन्होंने इंडिया को नाम दिया तियांजू, जो उनकी लैंग्वेज में मतलब होता है हेवनली मास्टर. सो इससे हमें पता लगता है कि चाइनीज रिस्पेक्ट इंडिया, राइट. सो द टर्म हिंदुस्तान was first used in a Persian inscription some 1800 years ago. Later, it became the term used by most invaders of India to describe the Indian subcontinent. अब हिंदुस्तान जो है वो भी पर्शियन ने सबसे पहले हिंदुस्तान कहा इंडिया को. ठीक है, उसके बाद और भी जो इन्वेडर आए उन्होंने इसी नाम से इंडिया को पहचाना, इसी नाम से इंडिया को कॉल किया या पुकारा. फाइन. Here is a classroom activity that you have to do. Complete the table of the many names of India. ग्रीक लोग क्या कहते थे, पर्शियन क्या कहते थे, लेटिन में इंडिया, चाइनीज़ में, अरेबिक में, फ्रेंच पीपल, इंग्लिश पीपल, ये कुछ मेंशन किए हुए हैं, कुछ आपको फाइंड आउट करने हैं. फाइन. सो here is the quick recap of the chapter. India is an ancient land which has had many names in the course of its history. The names given by the ancient inhabitants of India include Jambudvipa and Bharat. The latter became widespread in time and is the name of India in most Indian languages. Foreign visitors and invaders called India by mostly adopted name derived from the Sindhu or Indus River. This gave rise to names like Hindu, Indoi and finally India. So बच्चे, this is the chapter. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the back exercise yourself.